All right, we're getting you more details as far as the probe into Delhi's killer apathy is concerned. The Home Ministry has formed a committee now to probe the deaths of 3 civil services aspirants at Rouse Coaching Center in Delhi. The committee is charged with examining this incident, what happened here, proposing preventive measures and recommending policy changes to avert future tragedies. Report from the panel is expected within 30 days. Meanwhile, Delhi police is scrutinizing the CCTV footage, mobile phone recordings and statements from students and faculty to piece together the events leading up to the disaster. On Saturday evening, 3 IAS aspirants lost their lives due to flooding in the basement of Rouse IAS Coaching Institute, which was in fact running a library out of the basement illegally. The victims, Shreya Yadav from UP, Tanya Soni from Telangana and Naveen Dolvin from Kerala, were caught in the deluge after heavy rains inundated the basement of the center, killing all 3 of them. 3 बच्चों की जो बेसमेंट के अंदर पढ़ाई करते समय बेसमेंट में पानी भर जाने से जो मौत के कगार पे चले गए, ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। लेकिन उससे भी हृदय विदारक आम आदमी पार्टी के नेताओं का, आम आदमी पार्टी सरकार का व्यवहार है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति कहता हो कि हमारे कहने से अधिकारी काम नहीं कर रहे हो, तब कह रहा है जब दुर्घटना हो चुकी है। पिछले 3 दिन से अरविंद केजरीवाल की सरकार, वहां के स्थानीय विधायक और केजरीवाल की पूरी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। छात्रों का दर्द समझने की जरूरत है। एलजी वहां दर्द समझने गए थे और इसलिए वहां एक्शन भी हो रहा है। लेकिन ये जो भ्रष्ट तंत्र बैठा है, 25 दिन से वहां की स्थानीय जनता, वहां के विधायक दुर्गेश पाठक जो एमसीडी के प्रभारी भी हैं, जिनका काम था नालों की सफाई कराना, उनको कह रही थी कि नालों की सफाई करा दीजिए। स्थानीय विधायक है ना, 24 घंटे वहां रह के काम कराना चाहिए था, क्यों फरार है वहां से? 28 जून का एक वीडियो है जिसमें मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हैं, आतिशी मारलेना जी हैं, जिसमें गोपाल राय जी हैं, जिसमें इमरान हुसैन जी हैं। सब कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, बारिश आने वाली है, समस्या हो सकती है। मंत्री के पास समय है जनता के लिए, अधिकारी जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं उनके पास समय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं यह गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी और एलजी की कि दिल्ली को बर्बाद करना है, दिल्ली की जिंदगी को नारकीय बनाना है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुन दिया। Shreya Chatterjee getting in more details on that big story that we're tracking very closely. Shreya, what I want to know really from you is how do the authorities, the police really now intend to go about taking action against the MCD officers? Now we know that there is disciplinary action, but what about punitive action here? Well, there is a possibility, Sneha, that the Delhi police would also initiate a criminal, a negligence case against the MCD. The reason primary, if we go through the FIR, the Delhi police has kept the option open for investigation into the reasons behind why the drainage system was not operative in the Bara Bazar Road in Rajendra Nagar stretch. Now, yesterday, the Delhi police has already sent a notice to the MCD to understand who are the officials in charge responsible for the desilting activity in this particular area, whether there was any tender that was given to a private party by the MCD to continue the work. If not, what were the valid reasons behind it? So once the response comes in from the MCD, in all likelihood, we will be seeing the Delhi police taking action in the form of questioning the MCD officials to understand what really transpired. Yesterday, the MCD finally took some actions with bulldozers drilling the sewer drainage system, which was covered with construction work, and that's the reason the MCD was suggesting that the waterlogging persisted in the area. But when we asked them that why could this action not happen before, MCD officials on camera suggested that they had pressure mounted upon them from the coaching institutes is why no action could be taken before. So whether there is any veracity to these statements, all this will obviously be investigated by the Delhi police. And as of now, it's only the coaching institute owners and the force Gurkha driver who's been arrested by the Delhi police, but we're yet waiting for action from the side of Delhi police against the MCD officials in this horrific incident that took 3 lives of IAS aspirants while they were studying inside the library. Right, be with us. I'm just going to come back to you, Shreya, for more details on that. Yes, questions remain as to why MCD officers
who knew about the lapses here have not been arrested, though some action, vis-a-vis disciplinary action, has been taken. UPSC aspirants staged a protest against the death of their fellow students at Mukherjee Nagar in Delhi. The protesters blocked roads there, demanding action against culprits and safety of students. After death of 3 IAS aspirants, protest has entered in different parts of Delhi. We are in Mukherjee Nagar right now, and you can see huge police deployment with many students. Most of them UPSC aspirants have blocked road demanding justice for those who died after drowning inside a basement of an UPSC coaching center. All these students, IAS aspirants, are now blocking the road, demanding immediate action against those who were responsible for this mishap. Also, they are demanding action against those coaching centers who are flouting rules. With camera person Jagannath in Delhi, this is Abhishek Anand reporting for India Today. सर, हम रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को जो भी हम ब्रोकर को हम ब्रोकरेज सिक्योरिटी देते हैं सर, तो हम ब्रोकरेज सिक्योरिटी किस लिए देते हैं? 20,000 का हम फ्लैट लेते हैं सर, 20,000 की सिक्योरिटी, 10,000 ब्रोकर, यानी कि हम एक फ्लैट लेते हैं तो 50,000 का पड़ता है। तो सर सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है कि हम बाहर से लाइट से करंट के मर जाए। सर दूसरी चीज, जो भी सिक्योरिटी दी जाती है उसकी क्या वेलफेयर एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वायलेट क्यों हम सही करें? वहां के प्रेसिडेंट क्यों इस बात को नहीं देखते कि हम सिक्योरिटी ले रहे हैं? ब्रोकर जो है सर फोन रिसीव नहीं करते बाद में। मैं यहाँ पे लास्ट ईयर से रह रही हूँ। लास्ट ईयर भी एक बार आग लगी थी, पिछली बार संस्कृति में, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद भी 4-5 दिनों तक तो ऐसा रहता है जैसे कि पता नहीं हमें कितनी जल्दी जस्टिस मिलने वाली। लास्ट ईयर की बात है, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। और सिर्फ कोचिंग का ये हाल नहीं है। 2.5 लाख रुपए हम फी देते हैं, ठीक है, बेसमेंट में क्लास चलती है, जो भी है सिक्योरिटी है, क्या है क्या नहीं, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी इंसान की बात नहीं है ना, जो उनके साथ हो वो हमारे साथ भी हो सकता है। और फिर रही पीजी की बात, सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं यहाँ पे ब्रोकर किसी भी चीज के लिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी रिफंड करने में दुनिया भर के झमेले। फिर उनको कुछ भी बोलो तो वो सीधा कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, जैसे करना है, कहीं भी सिक्योरिटी वापस नहीं देते। उसके बाद सब पुलिस स्थिति है यहाँ पर। आप देखिए तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं है, और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। लोग हैं जो अभी भी समझ रहे हैं ये कॉलेज का कोई इवेंट है। आई फील सॉरी, आई रियली फील सॉरी। Whoever is commenting like this, I really feel sorry for all of us. Unnecessary comments कर रहे हैं। I am not here to lecture you, but आप लोग कर रहे हैं। It is not a college event, please. ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इस घटना के विक्टिम जो है हमारे भाई बहन, उनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जब तक दिया नहीं जाएगा राउज आईएएस की तरफ से। हमारी एमसीडी से सिर्फ ये मांग है, बट हम पैसा उनसे मांग रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग, क्योंकि ये जो हमारे भाई बहन है इन्होंने वहां फीस भरी थी और वो वहां घुट के मरे हैं पानी में। तो राउज आईएएस से हमें 5 करोड़ की डिमांड है सर। Courage Tiwari, another student from Rouse IAS Coaching Center, submitted a written complaint to the Delhi PWD or MCD about the hazards of waterlogging at her institute. The complaint included actionable warnings that were unfortunately ignored, resulting in the tragic loss of 3 lives. Listen in. Kanishka, my question is, you had filed a complaint. आपने एक complaint file किया था जुलाई 24 को, जहां पे आपने हाईलाइट किया था कि ये खतरा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। जी बताइए। यस सर, मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो कंप्लेंट मैंने 24 जुलाई को, लास्ट वीक की वेडनेसडे को, मैं खुद राव की एक स्टूडेंट हूँ, मैंने पूरा सेफ्टी कंसर्न देख के, ये आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट मैंने फॉलो किया, PWD साइट पे जाके जो स्टेप्स मेरे तरफ से हो सकते थे मैंने लिए, ये पूरा आप देख सकते हैं। ये मैंने इशू हाईलाइट किया जो पूरा इलेक्ट्रोक्यूशन का, नीलेश राय का एक इंसिडेंट काफी था, वेकअप कॉल हम सबके लिए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरा सेफ्टी कंसर्न यहाँ के एरिया का, मुझे बस 2 वीक हुए यहाँ पे आते हुए, 2 वीक में मैंने चीजें की, नाजुकता देखी कि यहाँ पे कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उस वाटर लॉगिंग में वेडनेसडे को मैं भी फंसी थी, बिना जान की परवाह किए, नंगी तारे मैं देख रही हूँ। उस पानी में भी मैंने आयरन गेट मैंने टच किया था, वो सारी चीजें मैंने मतलब मुझे खुद पछतावा हो जो चीजें मेरे तरफ से हुई थी। लेकिन मेन यही है ना, मेरे जैसे तो और भी लोगों ने टच किया होगा। मेन बात ये है, इस चीज की गारंटी कौन लेता है? ये 3 दिन मतलब
इंसिडेंट के 3 दिन पहले मैंने ये चीजें पूरी फाइल की थी। ये देखिए, एमसीडी ने लिखा है कंप्लेंट फॉरवर्ड टू एमसीडी कंट्रोल रूम एंड कंप्लेंट नंबर, इनकी जो भी फॉर्मेलिटी है। मुझे 6-7 ऑफिशियल्स के कॉल भी आते हैं, मेरे पास उनका नंबर भी है, जो कि एक हेड ऑफिशियल होते हैं। कहते हैं कि मैम हमने टीम भेज दी है, काम हो रहा है। पहली बार मुझे ये लगा कि चलो मेरी आवाज किसी ने सुनी, वरना हम उम्मीद नहीं करते कि ये लोग सुनेंगे भी हमारी आवाज। लेकिन सैटरडे को इतना बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाता है, बच्चों की जान चली जाती है। डाटा फिगर भी अभी पता नहीं सही बताया है गलत बताया है, मतलब हमें नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन मेरा यही क्वेश्चन है, ये प्रॉपरली मैं कह सकती हूँ, मैंने फोटो भी देखी है, इसी एरिया पे है, थोड़ा 2 कदम दूर पे, जो वहाँ पे मैं फंसी थी। उसके बाद मैं कोचिंग में गई थी, फेंस कूद के ही, क्योंकि अंदर तक बेसमेंट तक पानी लग गया था। मेरा यही क्वेश्चन है, अगर उसने स्टेप ले लिया होता, ये सब जो तारे वगैरह आप लगा रहे हो, वहाँ पे जो डिगिंग हो रही है, जो जेसीबी आ रखी है, इंसिडेंट के दिन उस दिन एक्शन ले लिया गया होता। यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट लिख रहे हो आप, एक्शन इज बीन टेकन ऑन योर कंप्लेंट, जो कि अनफॉर्चुनेटली जाने के बाद एक्शन आज लिया जा रहा है। जब तक जान नहीं चली जाती, माँ बाप छाती पीट के रो नहीं लेते, तब तक ना दिमाग आप लोग का जो अथॉरिटी है, या यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर है, जो मुझे 2 हफ्ते में पता चला, आई एम न्यू इन दिस एरिया, लेकिन 2 हफ्ते में ये चीज जो मुझे पता चला, आप लोग अगर यही हमारा कंसर्न निग्लेक्ट करोगे, हम मिडिल क्लास फैमिली से, ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाख रुपए दे के हमारे, मेरी मम्मी का कल खुद कॉल आया कि बेटा ठीक है तू, मैंने बोला मम्मी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जिनके गए हैं उनका भी तो कॉल आया होगा, स्विच ऑफ गया होगा उनका मोबाइल, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी। क्वेश्चन यही है, अगर इतना भी सेंसिटाइज, इतना भी एम्पैथी अथॉरिटी को हो ना, तो शायद ये दुर्घटना जो हुई नहीं होती।